class. Today we will start with your chapter number 5, Footprints Without Feet by H.G. Wells. The story is about a scientist named Griffin. He discovers the rare chemicals which can make a man invisible, but at the same time the man can be touched and felt physically. Let's read and find out how he uses or misuses his powers for his own. तो ये स्टोरी जो है, this story is about a scientist whose name is Griffin. He discovers rare chemicals which can make a man invisible. Invisible means which the man who can't be seen with the eyes, but at the same time the man can be touched and felt physically. Now we will read in this chapter that how he uses or misuses his powers for his own. The story is about a scientist named Griffin. He had been discovering ways which could make a man invisible and finally swallowed certain drugs that made him invisible. तो ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की है जिसका नाम ग्रिफिन है और वो डिस्कवरी कर रहा था उन तरीक़ों पर कि कैसे हम किसी भी आदमी को इनविजिबल बना सकते हैं, वो किसी को ना दिखाई दे, इस तरह से हम इस पर वो खोज कर रहा था और फिर फाइनली ही मेड दैट ड्रग एंड ही सॉलोड इट. उसने वो ड्रग बनाई और वो उसने खुद ली और उसके बाद वो इनविजिबल हो गया. So he was first noticed by two boys in staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it. और सबसे पहले उसको किसने नोटिस किया? उसको दो लड़कों ने नोटिस किया. Two boys noticed him. They saw his footprints, the marks of his foot in the staircase. तो सीढ़ियों पर उसके जो पैर के निशान उन लड़कों ने देखे और वो उसको फॉलो करने लगे. They follow it until the footsteps are fainter and cannot be seen. और वो कब तक उसको फॉलो करते रहे? जब तक उसके पैरों के निशान जो है वो हल्के ना पड़ गए. First, as he is feeling cold, he enters a mall for some warmth, and after the store shut down, he decides to wear some warm clothes and eat something. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है कहाँ गया, ही उसे ठंड लग रही थी तो इस वजह से वो एक मॉल में गया और वहाँ उसने कुछ अपने को जो है गर्म कपड़े जो है अपने लिए ढूंढे और स्टोर से उसने जब स्टोर बंद हो गया तो उसके बाद उसने वहाँ से कुछ गर्म कपड़े लिए और कुछ खाने के लिए कुछ सामान लिया. He first unboxes a few clothes and wears them. उसने बॉक्स खोला और वहाँ से कुछ क्लोथ्स निकाल के पहने और फिर किचन से रेस्टोरेंट के किचन से उसने कुछ meat and he took some coffee from there. And later he goes to a grocery store and eats sweets and drinks wine. And after that he went to a grocery store where he ate sweets and drink. From there he took a wine and he then falls asleep on a pile of quilts. और फिर वो एक क्विल्स के जो रज़ाई है उसके ऊपर जाके वहाँ पे सो गया. He then wakes up in the morning when some of the store assistants had seen him and started chasing him. अब जब वो उठा तो स्टोर के कुछ वर्कर्स ने असिस्टेंट्स ने उसको देख लिया और उसका पीछा करना शुरू किया. बिकॉज कैसे उसको पीछा करना शुरू, क्योंकि उसने कपड़े पहने थे तो कपड़े पहनने की वजह से उसका जो फिगर है वो उन लोगों को दिखाई दे रहा था और वो लोग उसका पीछा करने लगे. ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स ही वॉज वेयरिंग एंड बिकेम इनविजिबल अगेन. और उसने फिर से जो कपड़े पहने हुए थे वो सारे कपड़े निकाल के फेंक दिए और वो फिर से किसी को भी दिखाई नहीं दिया. देन ही स्टार्टेड रोमिंग around again without any clothes in the cool winters of London. और वो फिर से जो है लंदन के जो स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, वहाँ घूमने लगा और क्योंकि वो विंटर्स का वक्त था सो इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ही ठंडा था. He then decides to steal clothes from a theatre company as he knew he would get something there to cover his face as well. अब उसने सोचा कि वो जो किसी थिएटर कंपनी से कपड़े चुराएगा क्योंकि वहाँ से उसको अपने फेस को कवर करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा.
He then steals bandages for his face, dark glasses, false nose and a hat for covering himself. वो एक जो थिएटर कंपनी है वहाँ जाता है. देन ही स्टील्स बैंडेजेस फॉर हिज फेस. वहाँ से वो बैंडेजेस अपने फेस को कवर करने के लिए लेता है. ही टुक अ डार्क ग्लास to wear a false nose and a hat for covering himself. He then hits the shopkeeper and steals all his money. After that, he steals a shopkeeper. एक shopkeeper को hit करता है, वो मारता है और उससे सारा उसका मनी छीन लेता है. और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि लंदन इज़ टू क्राउडेड टू लिव. यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और यहाँ वो कभी भी पकड़ा जा सकता है. तो वो डिसाइड करता है कि ही वुड गो टू अ रिमोट विलेज. वो किसी दूर दराज के गांव में जाकर रहेगा. ही बुक्स 2 rooms एट एन इन एट द इपिंग विलेज. अब वो किसी एक विलेज है इपिंग, वहाँ जाकर वो 2 rooms अपने लिए बुक करता है. ही रीचेज देयर and it is strange for the people of Iping that a stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season. अब जब वो उस विलेज में पहुंचता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बहुत they felt strange that a stranger with such a weird appearance. Why was his appearance so weird? Because he had put on bandages on the face and nose and wearing glasses. तो ये अजीब सा उसका अपीयरेंस देख के हर कोई जो था उसको स्ट्रेंज फील कर रहा था कि ये कैसा आदमी हमारे गांव में रहने के लिए आया है. वंस his money is over, he steals from people and also hits the landlord and his wife when they try to check his room in his absence. अब उसका when his all his money finished, जब सारा पैसा उसका ख़त्म हो गया तो उसने फिर से लोगों को के पैसे चुराना शुरू कर दिया और उसने अपनी लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ को भी हिट किया. बिकॉज वाई ही हिटेड देम? he hated them because they want to check his room in his absence. क्योंकि उनको लगता था कि ये वो जानना चाहते थे कि आफ्टर ऑल हु इज़ दिस पर्सन. तो वो उसके रूम में जाते हैं उसका रूम चेक करने के लिए, लेकिन वो तभी वहाँ आ जाता है एंड ही हिट्स दैम. देन द विलेज कांस्टेबल इज़ आस्क्ड फॉर हेल्प, बट बिफोर दैट Mrs. Hall, the wife of the landlord, asks him questions regarding who he is and what he did to her furniture. अब जो कांस्टेबल है विलेज कांस्टेबल, उसको भी बुलाया जाता है हेल्प के लिए, लेकिन उससे पहले जो लैंडलॉर्ड जहाँ वो रह रहा था उसकी वाइफ जो है उससे पूछती है कि उसने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया है ना. तो उस वजह से दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस एंड ही डिसाइड्स टू शो हर हु ही रियली इज. नाउ ही गॉट फ्यूरियस व्हेन शी आस्क्ड हर दैट पर्सन द साइंटिस्ट द क्वेश्चंस. जब वो क्वेश्चंस उससे पूछने लगी तो वो बहुत नाराज हो गया और देन ही डिसाइडेड दैट ही विल टेल हर कि हु ही रियली इज, कि वाकई में वो कौन है वो उसको बता देगा. The people then see a headless man and Mr. Jaffers. The constable also finds out that he would have to arrest a man who does not have a head. अब लोग देखते हैं कि एक आदमी जिसका हेड ही नहीं है, हेडलेस है, वहाँ पर उनके सामने खड़ा है. और जो मिस्टर जेफर्स थे, who was the constable of that village, उनको लगता है कि उन्हें इस आदमी को जो है इनको अरेस्ट करना चाहिए जिसका हेड ही नहीं है. They are unable to catch Griffin as he removes all his clothes and becomes invisible. Or no one could catch him because he removed all his clothes and he again became invisible. तो जैसे ही लोग उसको पकड़ने आते हैं तो वो अपने सारे क्लोथ्स जो है फिर से हटा देता है और वो फिर से इनविजिबल हो जाता है. He even knocks out Jaffers as he tries to catch him. और वो जो है he hits Jaffer so badly that he became unconscious and he fled from that village. So no one could catch him. So this is the story of a scientist who misuses his discovery
and in this way the story comes to an end. And thank you and have a nice